Okay, we are recording an episode of VodCast today, and focus. Nikon is always terrible at focusing, but I think it's focused today. Is it? Don't know. Takes me like 20 years to focus myself. My God, what a waste. Yeah, okay. All right, let's begin it. All right, so good evening, ladies and gentlemen. How have you been? Today is a day which is pretty special. Why do I say that? Because A, it's been a long time since I recorded an episode of VodCast, and B is because today is Hindi Day. And people might tell me, and people might tell you, and people might think about it कि भाई ऐसा भी क्या खास है आज के दिन में, which means that what is so special about today? But the thing is, people who use Hindi language in their day-to-day dealings, and they have read Hindi, and they've read Hindi literature, and they've seen Hindi films, they've heard Hindi stories, they've basically lived Hindi their entire life. Today is a very special day for those people. Why do I say so? Because I have been a part of that particular fraternity. I have been a part of that community who really loves Hindi. And before I go ahead, you might see me sweating all this while because it's a very humid climate here, and I had to record a video. So for videos, I kind of do stuff, and the focus is still not to my liking. I don't believe it's yeah, okay, I think I need a secondary monitor to just, check out my focus. But anyways, if this video is out of focus, bear with me because Nikon cameras are terrible on autofocusing, and I am terrible on manual focusing sometimes. Sometimes I'm okay, that's mostly chance. But yeah, speaking of Hindi Day today, so today's video is going to be recorded in two parts. First part would be me speaking to everybody who understands Hindi and understands English. It's for everybody. Basically, this part will contain everything that I want to convey. And then I would be speaking in Hindi because it's Hindi Day. And if I don't speak in Hindi, people who listen to me in Hindi and people who want me to speak Hindi would probably get annoyed. And I don't want to annoy anyone today because annoyance reminds me that Hindi is a kind of a language that annoys a lot of communities in India. Well, some people have a myth and they keep on circulating this myth all around that Hindi is our national language. It's not true. Hindi is basically the official language of the government of India. India is comprised of several regions, and several regions have their own languages, their own dialects, their own cultures. It's a conglomeration of a lot of cultures, of a lot of people, and a lot of other stuff. A lot of dress codes and a lot of oh my God, the sweat is dripping like anything. So we are diverse, and we have these cultural diversities which make us stand apart from the rest of the world, and we are literally very proud of being multilingual, multi-religion kind of a country, which has its own perks, has its own problems as well. But this video is not going to discuss any of that. So speaking about Hindi and my experiences with Hindi, first of all, wishing everybody a very happy Hindi Day. If you speak Hindi, if you understand Hindi, if you write Hindi, if you deal with Hindi, you know the beauty of this language. And this is one particular language that we speak throughout the country. So it is a thing in India, that some people don't like the language Hindi, and they were like, we're going to boycott this language. And a lot of people do that, especially from various parts of this country. And I've never really understood why they do it. They must be having their own reasons. But what I somehow feel is that Hindi is one language that keeps us connected. Wherever you go in India, it's a strange thing to happen, but wherever you go, Hindi is one language that would
everybody would know probably some of it. And there are so many other languages that people would know nothing of. And somebody would keep on talking and talking and talking in their own dialect, in their own language, in their own regional language or whatever. And the other person would probably not be able to understand anything. Like, I've been to southern parts of India, I've been to western parts of India, I've actually been to almost all the parts of India. And one thing that kept me close to people was Hindi. You know, I knew Hindi and they knew a bit of Hindi, so we could communicate and we could converse with each other. What I truly feel is that language should not be a barrier. Language is primarily meant to remove those barriers. But some people don't understand this and they create unnecessary barriers. And those people are everywhere. You can't do much about those people. And those people they are still spewing venom on Twitter, if I may. If you open Twitter and follow the hashtag Hindi Day, you will probably find somebody speaking bad about Hindi just because it's a language that they don't approve of. Now, I don't understand why they do this. And such people are usually morons. But Hindi is a beautiful language. But personally, I'm very glad to be born in this part of the world, in this part of this country, where Hindi is a language highly revered and highly spoken. In North India, I would tell you that Hindi is one language that is not just a language. It's basically, it conveys a lot of emotions. Everybody is using Hindi and everybody is conversing in Hindi and everybody is very happy with their Hindi speaking skills. And people do take pride that, they know Hindi and they can converse in Hindi. And so many great things, Hindi films, Hindi movies, and Hindi stories, Hindi poetry is fantastic. We've had some great poetries in Hindi. Sometimes I would like to share some of the Hindi poetries on A Talks Poetry because they are worth sharing. They are great. They are fantastic. And they convey emotions in such a hearty manner that it's difficult for you to just ignore them. It's really difficult for you to ignore them, to ignore the emotions, to ignore the feelings, to ignore the fact that those words convey what somebody really wants to convey to someone else or to themselves. So I think I've spoken enough in English on Hindi Day. Now it's time for me to switch over to Hindi. And let's do it right now. तो नमस्कार, प्रणाम, कैसे हैं आप सभी? और हिंदी दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेरों बधाइयाँ और हार्दिक अभिनंदन। आज हिंदी दिवस पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदी जो भाषा है, उस भाषा को लेकर के मैं जन्मा, ऐसे प्रांत में जन्मा जहाँ पर हिंदी फली फूली बड़ी हुई और जहाँ पर हिंदी को बहुत सम्मान मिला। मगर जब मैं आसपास देखता हूँ तो कुछ लोग भाषा की मर्यादाओं के बाहर जा कर के उसकी अवहेलना करते हैं। कुछ लोग भाषा पर विवाद करते हैं, कुछ लोग भाषा पर प्रश्न उठाते हैं। मेरा उन सभी लोगों से एक ही आग्रह है, दरअसल ये आग्रह नहीं है, मेरा उन सभी लोगों से एक प्रश्न है। वो प्रश्न ये है कि अगर हिंदी इतनी आपत्तिजनक है तो आप हिंदी फिल्में क्यों देखते हैं? तो आप हिंदी टीवी शोज़ क्यों देखते हैं? क्यों आप हिंदी साहित्य को पढ़ना चाहते हैं? क्यों आप हिंदी का मजाक भी बनाते हैं? और मैं आपको हकीकत बताता हूँ कि ये एक बहुत ही दुखद बात है। मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं कभी देखता हूँ कि कभी कोई दक्षिण भारत से या कभी कोई पूर्वोत्तर से या कहीं से वो लोग हिंदी का मजाक उड़ाते हैं। वो लोग कहते हैं कि हमारी भाषा पुरानी भाषा है, हमारी भाषा सबसे पुरानी भाषा है, हमारी भाषा श्रेष्ठ भाषा है, हमारी भाषा शुद्ध भाषा है। ये सब बातें ठीक हो सकती होंगी भी, मैं मान सकता हूँ। मगर भाषाएं एक वक्त के बाद केवल भाषाएं नहीं रह जाती। भाषाएं एक वक्त के बाद भावनाएं हो जाती हैं। और अगर आप किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाएंगे
तो तैयार रहिए कि आपकी भावनाओं को भी कोई ज़रूर ठेस पहुंचाएगा। और जितना मैं अपनी ज़िंदगी से सीख पाया हूँ, मैं केवल इतना ही कह सकता हूँ आपसे कि कीचड़ के व्यापार में दोनों पक्षों को केवल कीचड़ ही मिलता है, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। लोग अक्सर कहते हैं कि कीचड़ में पत्थर फेंकने से वही कीचड़ उड़ करके आपके अपने कपड़ों पर भी गिरता है और आपके कपड़ों को भी मैला कर देता है। तो ये बात तो हुई उन लोगों की जो हिंदी भाषा का सम्मान नहीं करते या हिंदी भाषा पर विवाद करते हैं, या जो भी कोई बात है। ये बात आपको बुरी लग सकती है और मैं क्षमा प्रार्थी हूँ अगर आपको मेरी कोई बात इस वीडियो में कही हुई बुरी लग रही हो तो। मगर ज़रा सोचिए, जो भाषा इतने लोगों को जोड़ी हुई है, उस भाषा को कुछ लोग इतना गलत इंटरप्रेट करते हैं। उस भाषा के ऊपर, उस भाषा को लेकर के लोग मुद्दा बना देते हैं। लोग कहते हैं कि हमारी भाषा तुम्हारी भाषा से अच्छी है। ये तुम्हारी भी भाषा है, ये तुम्हारी भी भाषा है, तुम्हारी भाषा मेरी भी भाषा है। मैं वो भाषा जानता नहीं हूं, मगर ये इस बात से ये सिद्ध नहीं होता कि वो मेरी भाषा नहीं है और ये तुम्हारी भाषा नहीं है। तो भाषा के विवाद को त्यागना चाहिए। भाषा के विवाद में कुछ नहीं रखा। हमें आगे बढ़ना चाहिए। अपने आंतरिक कलह, अपने आंतरिक सौहार्द को हमें जो है उसके लिए कोई ना कोई समाधान ढूंढना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें इतनी छोटी हैं कि शायद ये चीज़ें जो हैं वो कल को अगर आप देखें तो शायद ज़्यादा मायने नहीं रखते। मगर फिर भी कुछ लोग इन बातों पर झगड़ा कर रहे हैं, कुछ लोग इन बातों का मुद्दा बना रहे हैं। अब वो राजनीतिक मुद्दा हो सकता है, वैचारिक मुद्दा हो सकता है, वैधानिक मुद्दा हो सकता है, सामाजिक मुद्दा हो सकता है, धार्मिक मुद्दा हो सकता है, कोई भी मुद्दा हो सकता है। मगर इन सब मुद्दों से ऊपर एक मुद्दा है और वो मुद्दा है सौहार्द का। तो सौहार्द बनाए रखें, भाषा की मर्यादा को बनाए रखें, भाषा की गरिमा को बनाए रखें, और भाषा चाहे कोई भी हो उस भाषा का आनंद लेते रहें। क्योंकि मैं साहित्य से जुड़ा हूं, मुझे कविताएं, लेख, शायरी पढ़ना बहुत पसंद है। हिंदी के अंदर जब मैंने बचपन में मैं छोटा था तो मुझे बड़ी दिलचस्पी आती थी कि मैं हिंदी कविताएं पढूं, हिंदी कहानियां पढूं। और उन हिंदी कहानियों को, कविताओं को पढ़ने के लिए मैं न जाने कौन कौन सी लाइब्रेरीज़ में जाता था। कभी कभार वहाँ से किताबें उठाकर लाता था, इशू करवाता था। और आलम यह था कि कुछ किताबों को तो मैं ख़रीद ही लेता था और वो किताबें आज तक पढ़ी हैं मेरे पास। मैं तो पढ़ चुका हूँ मगर कोई और नहीं पढ़ता उन्हें। मगर किताबें किताबें होती हैं और वो कभी पुरानी नहीं होती, ये सच है। अगर मैं हिंदी की कविताओं की बात करूं तो आज मुझे जो सबसे पहला जो कविता का नाम याद आता है वो कविता है रामधारी सिंह दिनकर जी की, रश्मि रथी। रश्मि रथी एक ऐसी कविता थी जिसने पूरी महाभारत को एक कवितामय स्वरूप में प्रस्तुत किया। और रश्मि रथी की जो कविता थी वो शायद कहीं ना कहीं अंगराज कर्ण पर उन्होंने आधारित की थी। बहुत समय पहले मैंने वो कविता पढ़ी थी। मुझे आज ये तो याद नहीं होगा कि उसकी पूर्ण विषय वस्तु क्या है, परंतु मैं ये कह सकता हूँ कि साहित्य का एक बेजोड़ नमूना है रश्मि रथी। रश्मि रथी बेजोड़ नमूना है। और हिंदी लेखन की अगर मैं बात करूँ तो आज के कुछ ऑथर्स हैं जो मुझे बहुत पसंद आ रहे हैं, अच्छा लिखते हैं वो हिंदी के अंदर। उनमें से एक ऑथर जिनका नाम मैं लेना चाहता हूँ, और मैं वीडियोस पर यूजुअली कभी नाम लेता नहीं हूँ पर इनका नाम मैं ले लेता हूँ। तो इनका नाम मैं ले लेता हूँ और इनका नाम है दिव्य प्रकाश दुबे। मैं जब भी दिव्य प्रकाश दुबे साहब की किताबें पढ़ता हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि वो हिंदी साहित्य के अंदर कुछ उनका योगदान ऐसा है कि वो कुछ ना कुछ नया इसमें लेकर आ रहे हैं। और नई कहानियों को नए तौर तरीके से प्रस्तुत करना ये काबिल तारीफ़ है। तो अगर कभी मौका लगे, आप हिंदी पढ़ना चाहते हो या हिंदी पढ़ते हो या हिंदी
कविताएं पढ़ते हो या हिंदी नॉवेल्स पढ़ते हो तो दिव्य प्रकाश दुबे जी कुछ बहुत अच्छी कहानियाँ लिखते हैं। उनमें कुछ छोटी कहानियाँ भी होती हैं और कुछ नॉवेल्स भी होती हैं, तो अगर आप चाहें तो वो पढ़ सकते हैं। तो आज हिंदी दिवस पर मैं आप सभी लोगों को जो हिंदी बोलते हैं या हिंदी नहीं बोलते बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हिंदी को लेकर के जो वाद विवाद चल रहा है वो वाद विवाद समाप्त होगा। याद रखिए, हिंदी भाषा एक बहुत अच्छी भाषा है और हिंदी भाषा का अगर सही उपयोग करें आप, गाली गलौज ना करके, तो ये बहुत सुंदर भाषा है। और इस भाषा का सौंदर्य ये है कि इस भाषा को सभी लोग बराबर रूप से समझ पाते हैं और जो कम समझते हैं वो भी कुछ ना कुछ तो समझ ही जाते हैं। तो ये एक ऐसी भाषा है जो हमें जोड़े हुए है। मैं और कि ये बात किसी भाषा के लिए नहीं कह सकता। और दिलचस्प बात यह है कि मैं जहाँ पैदा हुआ वहाँ हिंदी भाषा प्राइमरीली नहीं बोली जाती, वहाँ लोग पंजाबी में बात करते हैं। और मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, वो तो पंजाबी बोल भी लेते थे और लिख भी लेते थे। पंजाबी बोल तो मैं भी लेता हूँ, लिख नहीं पाता। मैं पढ़ लेता हूँ थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं। मगर हिंदी का ऐसा जज्बा कुछ था कि मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि यार हमारे घर में सबसे अच्छी हिंदी तुम ही बोलते हो। तो उसको मैंने बड़ा कॉम्प्लीमेंट समझा और उसके बाद कुछ ऐसा हो गया कि मुझे बस मैं हिंदी की तरफ और उर्दू की तरफ मैं खींचता चला गया और मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग भी हिंदी की तरफ खींचिए और जो करना है करिए, नहीं। मगर एक भाषा है, सम्माननीय भाषा है, एक बहुत ही ओजस्वी भाषा है। इस भाषा का कम से कम सम्मान तो करिए। तो हिंदी दिवस मनाइए। हिंदी दिवस आज का दिन है, मगर हर रोज़ हम हिंदी बोलते हैं, हर रोज़ हम हिंदी भाषी लोगों से हमारा वास्ता होता है, हम मिलते हैं उनसे। तो हमें कम से कम इतना करना चाहिए कि अगर कोई हिंदी बोले या ना बोले तो भाषा के बेसिस पर किसी के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो। ये हमारा प्रेरोगेटिव होना चाहिए। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। हिंदी दिवस की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं और बधाइयाँ। और इसी तरह हिंदी फलती फूलती रहे, इसी तरह हम लोग एक दूसरे से मिलते जुलते रहें और लड़ाई झगड़ा कम हो, प्यार मोहब्बत ज़रा बढ़े। और इसी तरह कविताएं, महफिलें सजती रहें, कवि सम्मेलन होते रहें, हम हंसते रहें, रोते रहें, चाहे जैसे भी रहें, एक साथ रहें। इसी के साथ आज का वॉडकास्ट यहीं समाप्त करता हूँ। प्रणाम।